आप जी के सामने जथेदार कमाल सिंह उन्होंने दीवान दुशहरे का इतिहासक पक्ष वो रखा। हुण तो लैके नितनेम की शुरुआत की अरदास तक पंडित यादविंदर सिंह जी उन्हों का जो प्रकरण है वो सिद्धांतक पक्ष अज के दिन का दुशहरे का वो अपनी कथा राही आपनू इस पक्ष के नाल जोड़नगे। हुण तो लैके नितनेम की अरदास तक आप उन्होंने सरवण करो। धन्यवाद। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गौरिंड को मेरी है परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। तंता योग जन्म है जो सतगुरु जी दे दर्शनां दा आनंद, नाम सिमरन, नामधारी संप्रदा दे विद्वान जथेदार गुणी सज्जना तो गुरबाणी और सतगुरां दा जस सरवण करते आ रहे हो। अज भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति दे विच एक खास स्थान रखण वाला दिन है। जदों पूरे विश्व का इतिहास पढ़ीदा, इतिहास शब्द का अर्थ है इति, जो है आस हो गया। तथ्य परक जो घटनावां ने काव्य दे विच, कविता दे विच व्यक्ति दे कवि दे मन की कल्पना की छलांग है, भावना की उछाल होया करदा है। पर इतिहासकार नूं जो तथ्य है, जो घटना हुई है, वापरी है, उहदे अनुसार लिखना पैंदा है। और इतिहास जो घटना बीत गई है उन्हों बार बार याद करन दा की अर्थ है। चाहे वो चंगी है, चाहे मानवीय समाज वास्ते बुरी है, इतिहास नूं इस करके याद रखिया जांदा है ताकि भविख दे विच उस तरह की गलती, उस तरह का आचरण ना होवे। और जिन्हां महापुरुषां ने इतिहास बनाया अपने दैवी
ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਫੇਦ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਅਕਤੀ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਵਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ, ਦਰਾਂ ਉਸ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਅਫਗਾਨ ਆਏ, ਡੱਚ ਆਏ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦੁਰਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ।
ये जो सारा नॉन कॉरपोरेशन आ सहयोग अंदोलन है, ये मूल च की है? भारतीय धन संपदा नूं बचाउणा। किन्ने शासक इस हिंदुस्तान की धरती ते आए, गुरु नानक पातशाह तो पहला तो लैके हैरान हो जाइदा, इन्नियां मारां सहन तो बाद भी हिंदुस्तान की धरती के उत्ते धर्म क्यों खिलिया रह गया? ये संस्कृति और सभ्यता बची क्यों रही और ये निरंतर वधदी ही क्यों जा रही है? क्योंकि इस संस्कृति के मूल दे विच धर्म है। साध संगत जी, धर्म है। धर्म शब्द बहुत गहरा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म इस सारी सृष्टि का आधार है। धर्म धर्म शब्द का सामान्य अर्थ है धारणात इत्याहु धर्म, जिन्हों धारण किया जावे। धर्मस्य रक्षति रक्षता, जेड़ा धर्म की रक्षा करता है, वेद कहता है धर्म ओदी रक्षा करता है। जेड़ा धर्म नूं सुरक्षित करता है, धर्म ओदी रखिया करता है। धर्म कोई नियमां दा नाम धर्म नहीं है। नियम धर्म का बहुत बाहरी स्वरूप है। धर्म की आत्मा है, परमात्मा है। व्यक्ति की जिंदगी का मूल उद्देश्य की है? विपरीत परिस्थिति और दुख दे विच रह के भी अपने उस धर्म दे विच अड़िग रहना, स्थिर रहना, उदा नाम धर्म है। सास चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तौल धर्म दया का पूत। एक जगह नीतिकार महात्मा जदों महाभारत के युद्ध के अंतिम दे विच युधिष्ठिर पंजे पांडवां दे नाल स्वर्ग आरोहण करन लगदे ने, सारा राज भाग छड़ दिंदे ने। उदों इंद्र युधिष्ठिर नूं पुछदा, जीवन का सार दस। तू जिंदगी च बहुत कुछ वेखिया, तेरा बहुत तजर्बा है, जिंदगी का सार की है? युधिष्ठिर महाभारत के शांति पर्व दे विच अपनी जिंदगी का निचोड़ दसदे ने, और वो भारतीय संस्कृति है, और ये दुशहरे के त्यौहार की आत्मा भी उही है। साध संगत जी, कहते ने ना कामाद ना भयाद ना लोभाद धर्मम ना त्यजेद जीवितस्यापि नित्यो धर्मा सुख दुखे अनित्ये जीवो नित्यः अनित्य तद हेतु हो। युधिष्ठिर कहता है, इंद्र व्यक्ति नू कामना दे करके धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कामना धर्म नू च्युत करने वाली, धर्म तो डोलन वाली चीज की है? कामना। आ मिल जे, आ हो जे, तृप्त नहीं व्यक्ति हुंदा। यत पृथ्वीव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवा स्त्रिया ना अलम एकस्य पुरुषस्य तस्मात् क्षमम ब्रजेत। कहते ने अगर सारी पृथ्वी का धन पदार्थ किसी एक व्यक्ति नूं भी दे दिता जावे तां भी वो तृप्त नहीं हो सकता, तां भी तृप्त नहीं हो सकता। महात्मा गांधी क्या करते सन? इस पृथ्वी माता दे अंदर हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने की ते शक्ति है, पर पूरी धरती दे अंदर एक व्यक्ति की कामना पूरी करने की शक्ति नहीं गी। ये समझना जिंदगी दे विच साडा वीक पॉइंट की है। कामना एक ऐसी चीज है, एक ऐसी धारा है जिसकी समाप्ति नहीं हुंदी, और व्यक्ति इस कामना तो प्रेरित होके धर्म तो डिग जाता है। साध संगत जी, स्खलित हो जाता है। वो व्यक्ति का परीक्षण है। ना कामात, कामना करके अपने धर्म का परित्याग ना करे।
जो व्यक्ति सत्य का आचरण करेगा, जो व्यक्ति ईमानदारी के उत्ते जीवन व्यतीत करेगा, जो व्यक्ति अपने सतगुरु के हुक्मां नूं कमाएगा, हो सकता है बाहरी रूप च उन्होंने कोई नुकसान दिखता होवे, पर अपनी अंतरात्मा च जो शांति महसूस होंदी है, जो व्यक्ति दे अंदर बल ते उत्साह पैदा होंदा है, ये धर्म का आचरण करन वाला व्यक्ति ही दस सकता है। दूसरा इहदा अंदाज़ा नहीं लाउंदा। साध संगत जी नहीं लाउंदा। ईमानदारी ते खड़े रहना, झूठ दे अगे भी झुकना नहीं, और 100 मुसीबतां झलदियां होयां भी अपने धर्म ते कोई सूरमा ही खड़दा है, बाकी डोल जाते ने। साध संगत जी ना कामाद, कामना करके धर्म ना छड्डो, ना भयाद, किसी डर दे कारण अपने धर्म का त्याग ना करो, ना लोभाद, किसी लोभ दे कारण अपने धर्म का त्याग ना करो। जीवो नित्या जीवस्य बिना त्यक्तुम, चाहे अपनी मौत भी कबूल क्यों ना करनी पड़े, तावी धर्म का त्याग ना करो, ना करो। सुख दुखे तू अनित्य, कहते रहस्य की है, व्यक्ति कामना दे कारण, लोभ दे कारण, भय दे कारण, सुख ते दुख तो डरदा अपने धर्म का त्याग करदा है। कहते ने सुख ते दुख दोनों अनित्य ने, आउण जाण वाले ने, किन्ना भी सुख क्यों ना होवे खत्म हो जाएगा, किन्ना भी दुख क्यों ना होवे खत्म हो जाएगा। इस अनित्य वस्तु दे कारण अपना जो नित्य धर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। साध संगत जी रामो विग्रहोवान धर्म, वाल्मीकि जी की कहते ने राम धर्म की साक्षात मूर्ति है और रावण अधर्म की मूर्ति है। साध संगत जी दो संस्कृतियां दा आपस दे विच संघर्ष है, बुराई दे उत्ते अच्छाई दी जित है, अधर्म दे उत्ते धर्म दी जित है, न्याय अन्याय दे उत्ते न्याय दी जित है, आ मर्यादा दे उत्ते मर्यादा दी जित दा नाम ही दशहरा है। साध संगत जी रावण दे 10 सिरां दी भी गल कीती जांदी है। 10 सिरां तो भाव की है, एक अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जिन्हां दा अहंकार इन्हां इंद्रियां तो इन्नी प्रबलता दे नाल कम लैंदा, ओही है दशानन। आनन तो भाव हुंदा सिर, जिदे 10 सिर ने, ये दशानन तो ही विगड़दा रूप दशहरा साडे सामने आउंदा, जिदे ये 10 मुख खड़े ने, वो रावण है। जिहड़ा इन्हां इंद्रियां दी तृप्ति दे वास्ते जिउंदा वो रावण है, और जिहड़ा अपने सुख दा परित्याग करके अपने परिवार समाज और राष्ट्र नूं उच्चियां चुकण दे वास्ते हर बलिदान करन दे वास्ते तैयार हो जाता है, वो राम है। साध संगत जी राम है। तुलसीदास जी कहते ने एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सबते न्यारा। राम शब्द का अर्थ व्यापकता रमया होया। मैं एक दो घटना नाल उहदा चरित्र आप दे सामने रखा, किस तरह भगवान राम दशरथ दे घर अवतार लैन तो बाद राज्य अभिषेक दे वास्ते युवराज पद दे उत्ते नियुक्त कर दिता जाता है, भाव आउण वाला राजा राम बनणगे। केकेई माता दा पुत्र भरत, मितरेई माँ, पर प्रेम बहुत है, प्रेम बहुत है। रामायण भारतीय संस्कृति का एक दर्पण है। व्यक्ति नूं परिवार च, समाज और राष्ट्र दे विच किस तरह रहना चाहिए, और सारियां मुसीबतां दे विच रहिंदियां होयां भी
अपना धर्म का पालन करदियां होयां उस परमात्मा दे नाल किस तरह इकमिक होना है, उहदा इतिहास ही रामायण है। रामायण है। अवतारी पुरुषां दे जीवन दे विच जो इन्ना दुख वेखदे आ, उहदा कारण यह है परमात्मा आप प्रगट हो के साधारण लोकां नूं ये दिखाउंदे ने दुख जिंदगी दा हिस्सा है। कहना चाहे बहुत सौखी गल है, पर जेड़ा उस धर्म दा सहारा लैके इस दुख दे विच भी अपने धर्म दा त्याग नहीं करदा, जिंदगी दा युद्ध भी उही व्यक्ति जितदा है। साध संगत च जेड़ा हर हालात परिस्थिति च डोल जांदा है, ये जिंदगी उन्होंने बहुत परेशान कर दी है। साध संगत च परेशान कर दी है। परिवार की की स्थिति है, माता कैकेयी लालच दे विच आके अपनी दासी मंथरा दे कहन अनुसार कि युवराज राम नू बना दिता गया, अगों राम भगवान राजा बननगे और उन्हां दी कुल दे विच ही राज चला जाएगा। भरत हमेशा एक दास एक सेवक की तरह रह जाएगा। किस तरह कैकेयी ने राजा दशरथ नू मजबूर करके राम नू 14 साल का बनवास और भरत का राज्य अभिषेक करने दे वास्ते मनाया। और दशरथ जदों राम नू सद के ये कहना चाहते ने कि मैं ये निर्णय किया है, और राजा दशरथ का मुख नीचे है, वो भगवान राम दियां अखां च अखां नहीं पा रहे, किस तरह दसिया जाए। पर भगवान राम बड़ी प्रसन्नता दे नाल अपने पिता राजा दशरथ के सामने खड़े होंदे ने। दशरथ कहंदे ने, ऐ राम, कैकेयी दे मजबूर करन दे उत्ते मैं अपने वचन दे अनुसार तेनू 14 साल का बनवास और भरत नू राजा बनाउना मेरा दिल नहीं ये करदा, पर मेरी मजबूरी है। भगवान राम कहंदे ने, जे मेरे पिता दा वचन सत्य हो जाए, जे मेरी माता नू सुख मिल जाए, राम ऐसे कई बनवास लैण दे वास्ते तैयार है। राम ऐसे कई राज छड्डण दे वास्ते तैयार है। पिताजी आप शोक ना करो, आशीर्वाद दियो, राम आप दे वचनां नू जरूर निभाएगा और प्रसन्नता दे नाल निभाएगा। कोई मन दे अंदर प्रतिशोध नहीं। लक्ष्मण कहंदा तू विरोध कर, आपां लड़ के राज लवांगे, पर भगवान राम कहंदे ने नहीं, एक परिवार च सहचार बन जावे, एक परिवार च प्रेम बनिया रवे, माता पिता दे वचन सत्य हो जान, माता पिता नू सुख मिले, ऐसा राज दा परित्याग कर देना चाहिए। राम उथों निकल के किस तरह बनवास दे अनेकां दुखां नू सहंदे होए भी अपने धर्म दे उत्तों कदे विचलित नहीं होए। किस तरह सीता दी ये घटना बनी, रावण माता सीता दा पंचवटी दे विच हरण करके लै जांदा है और जाके बहुत मजबूर करदा है माता सीता नू अपने दासी बनाउण दे वास्ते, अपनी पत्नी बनाउण दे वास्ते, पर माता सीता अपने चरित्र दे उत्ते बिल्कुल दृढ़ रही। जदों कुंभकर्ण नू उठाया जांदा युद्ध दे विच, कुंभकर्ण कहंदा तू ये गलत कीता, पर इस्त्री दा हरण तेनू नहीं सी करना चाहिदा, पर जे तू कर ही लिया, तू बहुत बलशाली है, वो एक अबला नारी है, तू जबरदस्ती क्यों नहीं कीती। वो कहंदा नहीं, मैं चाहुंदा वो स्वीकार करे, पर एक राम तो बिना किसी होर दा चिंतन ही नहीं करदी। कुंभकर्ण कहंदा तेरे कोल बहुत सिद्धियां ने, तू राम दा रूप धारण करके चला जा,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੈਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਸੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਭਕਰਨ, ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਕੋਲ ਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਔਰ ਐਸ਼ਵਰਯ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਰਨ ਹਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਰੀਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀਚ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹਾ ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੰਚਵਟੀ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਐਸੇ ਧਨੁਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਾਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਸੀਤਾ ਐਸੇ ਦੁਰਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਚਨ ਕਹੇ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ਔਰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ,
मैं उस निश्चल ते समर्पित सेवक नूं इस तरह दे, उस महात्मा नूं इस तरह दे दुर्वचन कहे सन, इस करके रावण दे वल्लों मेरी इन्नी दुर्दशा कीती जाती है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता दियां ये गल्लां राम भगवान दे पात्र चो सीखण वालियां ने। किस तरह परिवार दी खुशी दे वास्ते सब कुछ सर्वस्व त्याग करने दे वास्ते भी तैयार रहना चाहिए। नीतिकार महर्षि चाणक्य एक जगह लिखते ने, कुलस्य ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, जनपदस्य अर्थे ग्रामम त्यजेत, जनपदस्य राष्ट्रम त्यजेत, राष्ट्रस्य अर्थे आत्म त्यजेत। कहते ने जे किसी पिंड की राखी हुंदी होवे, कुल का नाश करके पिंड की राखी कीती जावे। जे किसी वड्डे जिले नूं बचाउण वास्ते कोई खराबी पिंड दे विच करनी सहनी पै जावे, पिंड नूं छड्ड के उस जिले की राखी कीती जावे। और जे जिले नूं छड्ड के राष्ट्र और विश्व की राखी कीती जावे, वो उस तो भी श्रेष्ठ गल है। भाव परोपकार भारतीय संस्कृति है, क्षमा भारतीय संस्कृति है, अपने चरित्र नूं बना के रखना भारतीय संस्कृति है। उही रामायण दे चरित्र दे विच जगह जगह गल मिलती है। अखीर जदों युद्ध तो विजय हो जाती है, अपि स्वर्णमयी लंका ला नामे लक्ष्मण रोचते, स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण कहता है, भराता रावण की नगरी बहुत खूबसूरत है, क्यों ना आपां इत्थे ही वस जाइए। भगवान राम कहते ने, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, चाहे ये लंका सोने की बनी है, लंकागढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया दे वाक अनुसार। चाहे ये सोने की बनी है, पर जननी जन्म भूमिश्च, पर जो मातृभूमि हुंदी है वो स्वर्ग तो भी चंगी होया करदी है। जिहड़ा अपनी मातृभूमि दे नाल प्यार करदा है, अपनी मातृभूमि नूं सवारण दा यतन करदा है, जिहड़ा अपनी मातृभूमि दे वास्ते बलिदान करदा है, ये सारा सिख इतिहास इसी गऊ गरीब ते मातृभूमि दी सुरक्षा दे वास्ते है। ਇਹਦੇ स्वर भी राम भगवान दे चरित्र दे विचों मिलते ने। लंका दा परित्याग करके अयोध्या वापस आए। ये सी भगवान राम, हर दुख दे विच रहिंदियां होयां भी अपने धर्म नूं नहीं छड्डिया, अपने चरित्र दा परित्याग नहीं कीता। और उधर रावण की है, सब संपदा उहदे कोल है, पर अहंकार बहुत प्रबल है, किसी दे अगे झुकण दे वास्ते तैयार नहीं। सारियां ने समझाया सीता दा हरण अनीति है, अधर्म है, इनू छड़ दिता जाए, पर किसी दी नहीं मन्नी। अपने अहंकार और अपनी कामना दे उत्ते इन्ना दृढ़ रहा। ये अहंकार दी निशानी है। अहंकारी व्यक्ति सब कुछ छड़ दिंदा है, पर अपने अहंकार नूं नहीं छड़दा। साध संगत अहंकारी व्यक्ति चाहे किसी का भी नाश हो जावे, भरा मेघनाथ पुत्र मेघनाथ मारिया गया, भरा कुंभकर्ण मारिया गया, त्रिशरा मारिया गया, हौली हौली सारी सेना समाप्त हो जाती है। अखीर दे विच दमोदरी आके कहती है सब वंश नाश हो गया। हजे भी सीता नूं ले जा के भगवान राम दे सुपुर्द कर दिता जावे, आप दी और मेरी जान बच सकती है, ये लंका बच सकती है। पर वो रावण चुकिया नहीं। कहता जिन्ना चिर इस रावण दे अंदर एक भी श्वास बाकी है, ये रावण राम दे अगे समर्पण नहीं करेगा, नहीं करेगा, लड़ेगा, मर जाएगा, पर झुकेगा नहीं। ऐसे मानवीय स्वभाव ने, राम दे स्वभाव वाला भी जीवन है, रावण दे स्वभाव वाला भी जीवन है। मैं पहला अर्ज की है,
दसां मूहां तो की पावै, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये अहंकार दे मूँह ने। इन्हां अखां राहीं कौन देखदा? कि ये चमड़ा देखदा पिया, कि ये जीभ चमड़ा खांदी है पई, ये कन्न कोई चमड़ा सुनदा पिया। ਇਹਦੇ अंदर बैठा जो अहंकार है इस चमड़े राहीं झाकदा, अखां राहीं झाकदा, कन्नां राहीं सुनदा, जीभ राहीं बोलदा। ये जो अहम अहम करके चेतना दा हिस्सा परमात्मा तो अलग है और इन्हां इंद्रियां ते हमेशा सवार रहिंदा है। ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां नूं ही हमेशा तृप्त करने का यतन करदा है। वो रावण है। और राम देखो राज भाग दा सुख छड़ के जंगल च चला गया, सारा समर्पण कर दिता है, खान रहन दा ठिकाना नहीं, एक साधुआं वाला जीवन बतीत हो रहा है। एक रावण है जिहड़ा निरंतर अधर्म दा आचरण करके, असत दा आचरण करके अपनी उस इंद्रियां नूं तृप्त करना चाहुंदा है, पर अखीर चुकदा नहीं, मर जांदा साध संगत च। और राम दा चरित्र वेखिए, जदों रावण मर जांदा है, पर रावण बहुत विद्वान है, विद्वान है। मणिनो भूषिता सर्पा किम सौना भयंकरा। पतंजलि ऋषि एक जगह लिखते ने, सप है चाहे उहदे अंदर मणि है, मणि बहुत कीमती है, पर की उहदे अंदर जहर नहीं, कोल जाया ढंग भी सकता है। इसे प्रकार चाहे कोई विद्वान है, बहुत डूंघियां गल्लां लोक प्रलोक दे इतिहास सुनाउंदा है, बहुत व्याख्या करता है। मणिनो भूषिता सर्पा किम सौना भयंकरा। कि विद्वान दे अंदर वो ईर्षा, वो लोभ ते लालच खत्म हो जाता है। राम लक्ष्मण नूं कहंदे ने, ऐ लक्ष्मण रावण बहुत विद्वान है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਚਰਿੱਤਰ ਵੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਵੈਰ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ पीढ़ी नूं भी सिखा के जाने। ये विरोध, ये वैर जीवित रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। भगवान राम लंका दे विच जदों रावण तीरां दे नाल विधया पिया, लक्ष्मण नूं उहदे कोल भेजदे ने, बड़ी विनम्रता दे नाल चरणां दे कोल खड़े हो के उस राम तो शिक्षा लैके आ। और लक्ष्मण जांदा है और रावण उहनूं काल विद्या की शिक्षा देंदा, जिदा गुरबाणी चाहुंदा है। वो अग्नि उहदा भोजन बनाउंदी है, हवा उहदे कपड़े सिखाउंदी है, वो विद्या रावण दे कोल सी। ये है भारतीय संस्कृति। ये त्यौहार श्रेयश्च प्रेयश्च ये सिखाउंदा सानू धर्म का आचरण किया जावे, सच का आचरण किया जावे। इंद्रिय सुख दे वास्ते, ऐश्वर्य दे वास्ते ना जिया जाए। क्यों? हमेशा धर्म की जित हुंदी है, हमेशा सच्चाई की जित हुंदी है। ऐश्वर्य कितना भी वड्डा होवे, जे वो अधर्म का ऐश्वर्य है, रावण का नाश होया, कंस का नाश होया, सब का नाश जरूर हो जाता है। जित धर्म की है। यही दुशहरे का त्यौहार सानू शिक्षा देंदा है। सतगुरु जी कृपा करन, साडे जीवन दे अंदरों भी अधर्म, इंद्रिय सुख की जो लालसा है वो निकल के क्षमा, सच्चाई, दया ये साडे जीवन च प्रखर हो जान, ताकि साडा जीवन भी उस राम दे वर्गा बन के इस जीवन तो असी जित के जाइए। इन्हां शब्दां दे नाल दास खिमा दा जाचक है। सत श्री अकाल जी।